Hello friends, this is Mainak from Civil Center and I welcome all of you back to our channel. So friends, I am back with yet another episode of CKDKMK, that is Civil के दुनिया के मज़ेदार किस्से. So today we have a very special guest with us, that is Engineer Jitendra Kumar Tiwari, who is currently working as a water effluent treatment manager operations in Larsen and Toubro. So he had graduated in civil engineering BTech from KIT University in the year 2011. After that, he had joined Larsen and Toubro as a senior engineer. His experiences include as a civil engineer in blasting and mining, underground tunneling works, coal power plants projects, execution of fly ash handling system, and then he was promoted as a planning manager in which he had experiences in planning, project management, contract management, cost monitoring, and he has also expertise in financial planning like budgeting and monitoring sites, working capital negotiations, supply chain support to management. He has also worked in digital transformation leadership like implementation of ProCube, process reporting platform, and his expertise in business and operations include business operations and his experience in business operations include business operations and operation strategies, review and monitoring of jobs overall performance, contract management, orders and negotiations, critical analysis of EPC plans, budget preparation, working capital analysis, risk management, analysis of productivity, and the list goes on. So we are very honored to have such an experienced person in the civil engineering field, and he's also a very dignified person, and we are very honored that he has taken some of his time to speak to us and for all you viewers. So let's get started. So friends, I want to welcome Engineer Jitendra Kumar Tiwari to our show. Thank you, sir, for coming to our show and to share our knowledge, your knowledge and experience with our viewers. तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 2011 में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में पास आउट हुए, उसके बाद आप फील्ड में इन योर प्रोफेशनल लाइफ 9 इयर्स आपका एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट 9 इयर्स आपका एक्सपीरियंस है, तो कैसा रहा आपका जर्नी? हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। तो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव होगा कि मैं अपना जो इस बीच में जो जर्नी है उसको शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस था स्टार्टिंग में, बट व्हेन आई लुक बैक नाउ, अब खड़ा होकर पीछे देखता हूँ तो महसूस होता है कि यस, काम के साथ साथ जहां हम अपनी पढ़ाई को यूज करते हैं, at the same time many other things at personal life also we have learned a lot, and this was a fantastic journey. And I started my job with Larsen and Toubro L&T. So it was my dream company. So when I was at my college itself, I remember it was the starting of the fourth year, and many companies started coming in for campus drive. तो सापुरजी पैलोनजी पहली कंपनी थी, पुंजलैड कंपनी थी और गैमन इंडिया थी। तो आई यूज टू स्किप दैट कैंपस इंटरव्यू बिकॉज मुझे पता था कि एलएनटी 7th या 8th नंबर पे या 6th नंबर पे कहीं आ सकती फोक थी। एंड दैट वाज द थिंग फेमस एट दैट टाइम, दैट एलएनटी यूज्ड टू टेक अ वेरी फ्यू कैंडिडेट्स लाइक 2 or 3 most of the time. Hopefully in my time it was big pool, around 3-4 thousand people participated. And after that I joined L&T as a GT. I got inducted there, selected as a graduate engineering trainee. I worked many places. I learned a lot of things. Many problems I have faced. Somewhere it was very struggling time also. But now after this much time, I feel that yes, ये एक बहुत अच्छा अनुभव था और बहुत कुछ सीखा है। सर आप जैसे बोले कि अब स्टार्टिंग से आप एल&टी ज्वाइन करना चाहते थे कि स्टार्टिंग में डिफरेंट कंपनीज आई बट यू डिडंट ऑप्ट फॉर दैट, यू थॉट दैट आई हैड टू गो फॉर एल&टी। एंड आपने ये भी बताया कि उस समय भी इतना कंपटीशन था, पूल था 2000-3000 लोगों का। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके मन में या ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, कैसे ये कॉन्फिडेंस आपने जनरेट किया कि आई विल कम्पीट एंड आई विल गो इन दिस कंपनी ओनली? कैसा नहीं चलो ऐसा होता है ना, बहुत लोग पकड़ लेते कहीं पे भी, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं।
होता है, बट कंप्रोमाइज का पॉइंट ये नहीं था कि मैंने गोल्स बहुत रियलिस्टिक सेट किए अपनी लाइफ में, एंड टिल लेट आल्सो माय फोकस इज कंसिस्टेंसी, कि हम जिन चीजों को देख, व्हाट आई से, आई फॉलो रतन टाटा's दिस कमेंट कि कोई ऐसा डिसीजन राइट या रॉन्ग नहीं होता है, यू हैव टू टेक द डिसीजन एंड यू हैव टू मेक इट राइट। तो आप एक डिसीजन लीजिए और उसको सही बनाइए। तो at the time of my engineering entrance exam itself, while my most of the friends were going for computer engineering, information technology, some of them बहुत नीचे भी आते थे, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की ओर जाते थे। तो मेरा इंटरेस्ट यही था कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग पसंद था। इसके बहुत सारे वैलिड रीजन है, बिकॉज ऑफ द पर्सनालिटी ट्रेट भी एक चीज होती है जो भी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सर्टेन थिंग्स विल कम, आई विल शेयर विद यू। और कुछ स्पेसिफिक बिजनेस की एक बहुत अच्छाई है सिविल की, जो भी मैं शेयर करूंगा। तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग जहाँ कहीं भी मिल रहा था, मैं वही ढूंढ रहा था कॉलेजेस। अच्छा So at that time, from the day one itself, I was knowing that Larsen and Toubro Limited is one of the biggest company in Asia, I should say, and India में तो no undoubtedly it's a biggest company। इसके आसपास भी कोई दूसरी कंपनी नहीं है। अब बट थोड़ी प्रॉब्लम ये जरूर होती थी, थर्ड ईयर के आसपास तक पता चलने लगा था रियलिस्टिक कि डिफिकल्ट होता है जाना, कम इनटेक होता है, अंदर जाके सरवाइव करना है, और पैन इंडिया प्लेसमेंट है, पोस्टिंग हो सकती है। तो ये चीजें थी, बीच बीच में कुछ न्यूज कभी कभी आ जाती थी। ऑल कैरियर वाइज तो इट वाज गुड, मोस्ट ऑफ द टाइम कट ऑफ मार्क्स होते हैं वो 70%, 75%, तो उस सब में तो ठीक था। लेकिन फिर भी लगता था कि किसी तरह की क्राइटेरिया बेसिस पे कोई एलिजिबिलिटी ना हो। और फिर कुछ समय ऐसा भी आता था तो कि हम सुनते थे कि उनके क्राइटेरिया चेंज हो रहे हैं, एग्जाम लेंगे, इनटेक लेंगे या नहीं। बट होपफुली ये पता था कि इफ गोइंग टू एलएनटी विल बी गुड थिंग, if it is not there also, wherever I will go, I'll make a point there, I will make कुछ अच्छा ही करूँगा। और ये तो कॉन्फिडेंस था ही कि टू द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर जरूर किसी न किसी अच्छी कंपनी में कोई अच्छी जगह पे पहुंचना है। जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो बहुत अच्छा लगा, और आपके एक्सपीरियंसेस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग जानेंगे, बट उससे पहले मैं एक थोड़ा बैक जाना चाहता हूँ। जब आप बीटेक में थे, व्हेन यू आर इन योर बीटेक, व्हेन यू आर परसुइंग बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो आपने कैसे प्लेस किया? मतलब क्या, मतलब आपका स्ट्रेटेजी रहता था? मतलब पढ़ाई कैसे करना है, या कुछ प्रैक्टिकल सीखना है? मतलब तो कैसे आपका एज ए स्टूडेंट आपका कैसे या एक्सपीरियंस था? अब सोचने से तो वो दिन याद आते हैं, इट हाँ। वाज टाइम। हम्म लेकिन ऐसा था कि फर्स्ट ईयर तो वी वर टिपिकल स्टूडेंट, वो आईआईटी के प्रिपरेशन करने वाले जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट ऐसे थे। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स थोड़ा उस ट्रेडिशनल स्टडी होती है हमारी, उससे अलग होना शुरू हुआ। सिविल इंजीनियरिंग केम एज ए सब्जेक्ट, सो मैनी थिंग स्टार्टेड गेटिंग सर्वेइंग, और बहुत सारे इजी सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्टेड कमिंग। वहां से कुछ चीजें पता चली कि हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअली इस बिजनेस का आइडिया मुझे था शुरू से, क्योंकि मैं बहुत कीन ऑब्जर्वर था अपने लेवल में, तो मैं आसपास की चीजों को देखता रहता था। तो उस समय मुझे पता था कि बाहर कुछ चीजें कैसे होती, लेकिन अंदरूनी तौर पे कैसे बदल रही हैं, क्या इंजीनियरिंग है, क्या एनालिसिस है, कैसे डिजाइन करते हैं, सब चीजें आना शुरू हुई। और एक फिजिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, फिजिक्स वाज वन ऑफ माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। टिल टुडे आल्सो आई रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट फिजिक्स। अब थोड़े से चेंज हो गया, मैं इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। अब मेरे थोड़े प्रेफरेंसेस और चॉइसेस चेंज हो रही हैं, और रदर चेंज हो गई हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट एट दैट टाइम आई स्टार्टेड लर्निंग। सो अब मुझे जहां तक याद आता है, मेरी एक हैबिट थी कि मैं पढ़ता था, बट ये स्कूल कॉलेज वाला तो उतना नहीं पढ़ता था। द गुड थिंग आई वाज डूइंग इन क्लास, आई वाज वेरी अटेंटिव। ओके। आफ्टर दैट माय फ्रेंड्स नो मी दैट दे हैव हार्डली सीन मी रीडिंग इन हॉस्टल। तो जैसा होता था, असाइनमेंट वगैरह हम कुछ लोग थे क्लास में जो बनाते थे, और बाकी सब लोग फिर उससे हेल्प वो लेते कॉमन थे, स्टोरी है। एज हैपेंस इन इंजीनियरिंग। तो बड़ा कॉन्फिडेंस रहता था, कुछ दोस्त आपको पुश करके रखते हैं तुम्हें बनाना ही है। बट हाँ, स्टूडियस बहुत बुक्स से नहीं था मैं। बट यस, माय टीचर्स वर नोइंग कि इफ दे आर गोइंग टू टीच समथिंग, देयर इज समबडी, ही विल ऑब्वियसली कम आउट विद समथिंग न्यू। कुछ तो पूछेगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, और अगर वो सिंपली कोई ब्रिज का डिजाइन भी पढ़ा रहा है, तो मैं उनसे कुछ ना कुछ तो अलग पूछूंगा ही। कोई let it be a very simple, ordinary, out of box, whatever it is up to them, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में।
लेकिन मैं इंटरेक्टिव रहता था क्लास में। इससे होता क्या था कि क्लास में केवल इंटरेक्टिव रहने से पूरा काम हो जाता था, और फिर 2 4 6 घंटे एग्जाम के समय पढ़ना रहता था। कुछ रूममेट्स उनको पढ़ाता भी था मैं, तो उससे भी मेरा काम हो जाता था। और मोर और लेस इंटरेस्ट बहुत था, तो चीजें एक बार में याद, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होता है ना, तो वो चीज एक बार में याद हो जाती है। लाइक इन माय चाइल्डहुड मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था। So even take it history, geography, or anything. But even today, also, if somebody asks me, na, I remember all the data, each date, everything, what has happened when in freedom fighting, everything. So that That's everything great. remember. Even today, also, if I read some economics times or something, I can very well tell you what happened 1 month back, 2 months back, who said what, and what scenario, how much fund US is infusing, what is China, whatever I will read. If it is interesting, I will hold it. I will be holding it in my brain. सो इन दैट वे इट वाज इजी फॉर मी। मेरी बचपन से जो अपब्रिंगिंग थी और मेरा जो फोकस था साइंस सब्जेक्ट को लेके, तो मेरे लिए बहुत ही इजी था सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना। और शायद इसलिए मेरे शुरू के सेमेस्टर्स में मैं बहुत कैजुअल था एग्जाम्स वगैरह को लेके। थोड़े पॉइंटर कम थे, मतलब 8 के नीचे तो नहीं आया कभी, लेकिन कम थे। और द लास्ट सेमेस्टर जब थोड़ा फोकस हुआ, मैं जब सब कुछ थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स प्रैक्टिकल आने लगा, ग्रुप बनते थे कुछ 10 10 15 15 लोगों के, तो यस, द इम्प्रेशन व्हाट आई वाज कैरिंग ऑफ ए सिंसियर स्टूडेंट। तब मैंने कुछ बनाया नहीं था, अपने आप दोस्तों ने बना रखा था। तो अब होता क्या था कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है, क्योंकि वो आके आपको पुश करेंगे कि जल्दी जल्दी चेनेज कंप्लीट करो और उनको ग्राफ पेपर दो और ये कंप्लीट करे। तो ये होता था, एंड जल्दी एज छाप इट इज ये होना ही चाहता था। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी, तो आज तक बातें भी रही, कि हमेशा जो चीज मुझे ट्रेडिशनल बताई जाती है और आज भी जो बताई जाती है, इवन टुडे आल्सो, आई ऑलवेज चैलेंज द कॉन्सेप्ट। अगर वो ट्रेडिशनल है, बिल्कुल एज इट इज है, तो मुझे उसको अपनाने में, अपना बनाने में टाइम लगता है। क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ मैं, समझता हूँ उसको कई एंगल से, एंड व्हेन इट इज टेस्टेड, तो वो चीज याद रह जाती है और बहुत आसान होती है। तो एक तरीके से बहुत अच्छा टाइम था और बहुत इजीली निकल गया। थोड़ा बोरिंग होता था हॉस्टल में, बट आई यूज्ड टू हैव हैबिट ऑफ रीडिंग सम 3 4 न्यूज़पेपर डेली। इकोनॉमिक्स टाइम्स है तो उस समय से पढ़ता था, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ता था, और द हिंदू पढ़ता था। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो डिस्कस करते थे टॉपिक। तो शाम का समय जाता था सिविल इंजीनियरिंग के अलावा बाकी सब चीजों, डिस्कशन और दिन करने भर का टाइम सिविल में जाता था। और क्लास में बहुत फोकस देने से फायदा रहता था कि अपने में। आप चीज आ जाती थी। तो मैं तो दूसरी बहुत सारी मूवीज से प्रभावित नहीं हूँ जो आती हैं और बताती हैं कि वो बैक बेंचर और फ्रंट बेंचर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। सबसे स्मार्ट लोग मिड बेंचर्स होते हैं, तो 3 4 5 बैठते हैं। तो बैक बेंचर्स के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, वो एक फैशन है, बट ट्रूथ नहीं है। ट्रूथ है कि जो मिड बेंचर्स होते हैं 3 4 5 पे, अगर वो फोकस रहते हैं और कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, तो लाइफ के साथ वो अच्छा करते हैं, और बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ बैठता है। तो इसलिए मेरे लिए सिविल इंजीनियरिंग बहुत इजी पड़ा, बिकॉज ऑफ माई बेसिक फोकस। ओके, तो ये आपने बताया, और आपने ये भी मेंशन किया कि आपका जब ट्रेड चूज कर रहे थे तो सिविल इंजीनियरिंग एज ए बिजनेस में मेरा ऑब्जर्वेशन था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको इस फील्ड में, इस ट्रेड में क्या अच्छा लगता था कि दो आपने। चीजें थी। हाँ। कुछ कॉलेज था मेरा इंटरेस्ट का, तो वो नहीं मिल रहा था उस समय। हम्म। और तो लॉजिकली ये था। दूसरा एक इमोशनल अपब्रिंगिंग था। माय फादर वांटेड मी टू बी अ सिविल इंजीनियर, ओके। तो उनका मन था। तो मैं पहले दिन की काउंसलिंग में तो नहीं सिलेक्ट किया, मेरा हम्म। आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और यही सब ढूंढ रहा था, कंप्यूटर हम्म। साइंस कहाँ खाली कॉलेज हम्म। जाए। लेकिन फिर सेकंड डे मैंने सोचा कि अभी तक अपने मन से किया, लेट अस टेक दैट जो हम्म। होता है। लेकिन मुझे इस बिजनेस के बारे में आइडिया था, अच्छे से हम्म। मैं समझता था इस चीज को। हम्म। तो जब मैंने लिया और कॉलेज में गया, तो वहां से फिर इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। तो ये एक अच्छी चीज रही। दूसरा, मुझे तब से ही आइडिया था कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर इंजीनियरिंग या और भी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये बहुत कुछ खुद से परफॉर्म करने वाली चीज है। और ऑब्वियसली हु डज नॉट वांट इन दिस वर्ल्ड टू परफॉर्म बाय हिमसेल्फ, कौन सबसे ऊपर नहीं जाना चाहता है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड मुझे लगता है जो अभी मुझे बहुत अच्छे से इस चीज को मैं प्रूव कर सकता हूँ विद माय एक्सपीरियंस, कि ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में भी बदलाव लाता है। आपसे मिलने वाले लोगों की सोच बहुत बदलती है। अगर आपकी इंटीग्रिटी अच्छी हो पर्सनैलिटी में, तो आप डेफिनेटली। बहुत सारे लोगों की सोच बदल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस एज ग्रुप के हैं या कितनी आपकी उम्र है, लेकिन आप कुछ कंट्रोल करते हैं। और एक अच्छी बात बताता हूँ, एक एग्जांपल लीजिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग या किसी दूसरी इंजीनियरिंग का।
या किसी और भी सेक्टर का ले लीजिए आप, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर डीलिंग विद सम 5 करोड़ 10 करोड़ 2 करोड़, कुछ के तो सेल्स टारगेट ही लैक्स में होते हैं, 35-40 लाख काम करते हैं। सिविल इंजीनियर अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप 30 इयर्स भी नहीं पहुंचते हो, 25 साल 26 साल की एज में आपको कोई कोई कंपनीज अगर पोजीशन में आप बैठते हो, जैसे मैं एल में था तो एट द एज ऑफ 25-26 इटसेल्फ एक बिजनेस यूनिट में जब आप रिपोर्ट करते हो, उनके लिए काम करते, 3-4 हजार करोड़ का बिजनेस रहता है जिसको आपको जो है देखना है, पार्टिसिपेट करना है, व्यू देना है, और आपके व्यू सीरियसली लिए भी जाएंगे। कुछ कहीं पर आप अप्रूविंग अथॉरिटी रहते हो, तो लैक्स एंड करोड़ का मैटर अगर कोई डील करने की पावर दे रहा है तो कितनी बड़ी स्ट्रेंथ होती है, और उस समय आपको फील होता है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। एट द सेम टाइम जो हमें चार्म होता है हमारी सोसाइटी में, हम ब्यूरोक्रेसी को बहुत ऊपर समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत पावरफुल समझते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि ये बिजनेस जब मुझे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ कमेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन यूएस, और वो कह रही थी कि बिजनेस सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, फोर्स है इस प्लैनेट पर, अगर कोई पॉजिटिव चेंज लाना है तो। और ये बात भी सही है, जब हम सिविल इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होता है कि आगे क्या होने वाला और हम क्या बदल सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आप बिल्कुल नहीं सोच सकते कि पहले जो लोग सामान खरीदने का जो तरीका होता था, वो कोई सोच पाया हो आज से 20 साल पहले कि मॉल जैसा सिचुएशन हो जाएगा। तो बट एक स्ट्रक्चर बना, एक मॉल जैसी अरेंजमेंट बनी, और अभी चेंज हो गया। एस्केलेटर, थिंक अबाउट इट, हाउ वी हैव चेंज्ड इट। अपार्टमेंट्स, नोबडी वाज थिंकिंग कि उतनी छोटी सी जगह में 1000 लोगों को घर मिल जाएगा। हाउ मेनी टावर्स विल बी मेड, देन सीवेज, स्मार्ट सिटी, यू कैन टेक द कॉन्सेप्ट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप देख लीजिए, मार्वेलस, मतलब सिंस नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विल बी देयर, वाटर को स्टॉप किया जाएगा एंड क्लियर वाटर विल कम टू यू। ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, बट टोटल अरेंजमेंट है। तो सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में जाके लाइफ चेंज करता है लोगों का, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, और सोसाइटी आपको बहुत वैल्यू देती है, और ये सबसे अच्छी चीज है, इसको सेटिस्फैक्शन कुछ लोग बोलते हैं। तो मैं इसको समझता हूँ, यस, 2 साल बाद जब किसी जगह पे जाओ और वहाँ पे पेड़ और झाड़ियां काटने के बाद जब जमीन खाली बचती है, तो अपनी आंख से मैंने देखा कि 2 साल बाद वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बदल गया आसपास के गांव, लोग, रहन सहन और प्रोजेक्ट। तो ये चीज बहुत ड्राइव करती रही, जिसकी वजह से इतना दिन तक कंटिन्यू किया इस बिजनेस में, और आगे भी इस यही चीज अच्छी लगती है जो अट्रैक्ट करती है। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया सिविल इंजीनियर्स के लिए, मतलब इल्यूशन जो लोग सोचते हैं उसको रियलिटी में बदलते हैं सिविल इंजीनियर्स, जो आपने इतना अच्छा अच्छा एग्जांपल दिया है। तो उसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ऐसा मतलब बहुत कैंडिडेट्स में होता है जो मान मान लीजिए आप जैसे बोले कि हाँ पढ़ाई भी अच्छे से कर ली, उसके बाद मान लीजिए जॉब भी लग गया एलएनटी या कोई भी अच्छी कंपनी में, बट वो वहाँ पे टिक नहीं पाते, क्योंकि हो सकता है पता नहीं वो मतलब माइंड में क्या एजम्पशन करके गए कि मैं जॉब करूंगा तो ये होगा ये होगा। मूवीज का भी बहुत इफेक्ट होता है, और या तो मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, या मतलब कंप्लेंट रहता है कि हाँ स्टार्टिंग में मुझे इतना सैलरी नहीं मिल रहा है, तो फिर वो मतलब 1 साल भी जॉब करते नहीं, कंटिन्यू करते नहीं, फिर छोड़ देते हैं, फिर बोलते नहीं मुझे गवर्नमेंट का तैयारी करना है या आईटी में जाना है, या मतलब फील्ड चेंज कर लेते हैं, बैकआउट कर जाते हैं। तो उनके लिए आप मतलब क्या एडवाइस देना चाहते हो, मतलब स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, ये तो बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, हम्म और हम लोगों के साथ भी बहुत सारे लोग ज्वाइन किए, हम्म ट्रेनी रहे, और बहुत सारों ने छोड़ दिया। हम्म कुछ लोगों ने ऑल अराउंड दूसरा करियर ही ऑप्ट कर लिया है, हम्म एंड दे आर डूइंग समथिंग अदर देन दिस सिविल इंजीनियरिंग और इवन इंजीनियरिंग इटसेल्फ। हम्म तो ये एक है चैलेंजिंग सिचुएशन हम्म कंपनीज के लिए, लेकिन इसके लिए एक इंडिविजुअल इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। वो ये है कि जब मैं हम लोग जॉब में थे, चैलेंजिंग टाइम था, ट्रेनिंग में पहुंच करके हमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, किसी को अपॉर्चुनिटी सही नहीं मिली या प्लेस ऑफ पोस्टिंग नहीं मिली। आई मस्ट टेल यू दैट आई वाज पोस्टेड इन द माय फर्स्ट साइट एज ए एक्सकवेशन इंजीनियर, तो वहां पे कुछ काम नहीं था मैं सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ा, जैसा मेरा एकेडमिक्स था, तो मैं आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव क्वेश्चंस ऑन वाटर रिसोर्स, हाइड्रोलिक, राउटिंग, मॉडलिंग, देन इसमें मेरा एयरपोर्ट्स में, बिल्डिंग्स में इंटरेस्ट था, तो एक्सकवेशन और ब्लास्टिंग के काम में रखा गया। तो वहां पे मेरा क्या काम रहेगा, ब्लास्टर्स का काम बहुत इजी था, 2-4 दिन में समझ गया होता क्या, लेकिन अब आगे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, तो काफी फ्रस्ट्रेशन होता था। बहुत सारे लोगों ने, मेरे साथ के लोगों ने दूसरी कंपनीज में ऑप्ट किया या छोड़ा भी। उस समय ट्रेनिंग में तो कंपनी नहीं मिलता, दे गो फॉर प्रिपरेशन लाइक यू टोल्ड। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सपना रहता है गवर्नमेंट में जाने का, बट मुझे हमेशा लगता है कि आपका मोटिव क्लियर रहना चाहिए लाइफ का। जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, तो वो कुछ रटा रटाया आंसर जो होता है कि मैं
सर्विस करना चाहता हूँ। फैक्ट है कि बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं, और अगर आप ऐसा सोचते भी तो इसको अप्रूवल की जरूरत होती है, और अप्रूवल आपके एक्सपीरियंस से आता है। आप किसके लिए चेंज करना चाहते हो? सोसाइटी के लिए। वो चेंज होना चाहता है क्या? और अगर होना चाहता है तो हो क्यों नहीं गया? और आपके जाने से कैसे चेंज हो जाएगा? और अगर ऐसा ही होता तो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन ऑफ कंट्री आर बीइंग सिलेक्टेड एवरी ईयर, 1000 ब्यूरोक्रेट्स लिए जाते हैं, तो वो क्यों नहीं चेंज कर पाते हैं? ऐसा कोई खास चेंज तो हो नहीं पाता, पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही चेंज होता है तो होता है। तो ये तो एक अलग बात हो गई। तो ये डिबेट बहुत हल्का लगता था मुझे, कि ये कहीं ना कहीं रटा रटाया चीज है। सेकंड चीज, अगर आपको इसी सेक्टर में रहना है और कुछ बड़ा करना है, तो बड़े करने की तो चीजें यही पर है। अगर आप कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिस्ट है, यूरोपियन कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिस्ट, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ही टोल्ड द नेक्स्ट बिगेस्ट कंपनी, मतलब मल्टी बैगर बोलते हैं उसको, जो कई गुना अपने रेवेन्यूज को बढ़ा देता है, तो अगली कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आ सकती है। और एशिया वो ये हो सकता है, सब कॉन्टिनेंट एशियन, सब कॉन्टिनेंट साउथ एशियन, जहां से कंपनी आ सकती है। तो इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत बड़ी है। अगर आप वर्ल्ड S&P 2000 कंपनी की लिस्ट देखो लास्ट ईयर की, तो उसमें 500 जो टॉप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे बिलोंग्स टू फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स। तो बैंक्स तो मदर ऑफ ऑल बिजनेसेस होता है, सबको लेंड करते हैं, सबसे पैसा लेते हैं, तो सबसे बड़े होंगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। सेकंड इज द आईटी। आईटी से फैसिलिटेटर, तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इन्होंने ऑब्वियसली सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया है, तो इसमें भी कोई डाउट है। बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट कंस्ट्रक्शन इज द थर्ड बिगेस्ट, तीसरी सबसे बड़ी इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। और 2030 तक प्राइस वाटर हाउस कूपर की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से इंडिया विल टेक ओवर जापान इन कंस्ट्रक्शन और रेवेन्यू, एंड यूएस, चाइना एंड इंडिया विल कंट्रोल अराउंड 57 to 58% ऑफ कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू। तो बहुत कुछ है आगे, जिसमें बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। अब मैं अगर इंडिया पे आता हूँ, तो अगले 20 साल तक अगर सिंगल लार्जेस्ट कहीं पर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता रहेगा तो वो कंस्ट्रक्शन ही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यूपी, एमपी, पॉपुलस स्टेट महाराष्ट्र, यहाँ पे आप वाटर ट्रीटमेंट की स्थिति उठा के देखिए। स्टेट में बहुत ही बुरी पोजीशन है। जितने भी हमारी पास की नदियां हैं, रिवर्स हमको पोल्यूट कर रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट भी नहीं ठीक है, ट्रीटेड वाटर भी नहीं छोड़ रहे हैं, और ड्रिंकिंग वाटर का इशू हर साल 10 फीट 20 फीट ड्रिंकिंग वाटर नीचे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना ही होगा। गवर्नमेंट ने करना शुरू भी कर दिया है, 2024 तक प्लान लेकर आए हैं वो, ये सबके घर में नल से जल का जो एक अभियान चला रहा है। तो ये एक दो चीजें हो गई। आप एयरपोर्ट के ले लीजिए, आई कैन टेल यू, इंडिया में 84 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे कुछ साल पहले तक, 10 12 15 और ऐड हुए, अराउंड 100 हुए। बट यू नो अराउंड 500 प्लस एयरपोर्ट्स की लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट के पास है, बाउंड्री बनी हुई है, उन पर फ्लाइट नहीं उड़ती है। अभी कोविड-19 की वजह से ऑब्वियसली एयरपोर्ट इंडस्ट्री इटसेल्फ चैलेंज में है, लेकिन बात ये है कि स्कोप बहुत ही ज्यादा है। लोगों का शहरों की तरफ आना, नेशनल हाईवे पे बहुत काम हुआ है। पहले कभी 3-4 किलोमीटर पर डे हम बनाते थे, आज 15 से 16 किलोमीटर बनाते हैं, और ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। बुलेट ट्रेन रिकॉर्ड में। तो अगर कुछ भी सबसे अच्छा बढ़ने वाला आपको दिखता है, तो सेक्टर यही है कि कंस्ट्रक्शन आप आके देखिए, 5 साल पुराना भी देख लीजिए। आई कैन टेल यू, यू फाइंड आउट अबाउट L&T 2000 के आसपास L&T एक 4-5 हजार 8 हजार करोड़ की कंपनी होती थी, 20 फोल्ड और 80 फोल्ड इसका रेवेन्यू बढ़ा है पिछले 10 से 12 सालों में। तो इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बताते हैं कि बहुत बड़ा समुद्र है, और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बस जरूरत है तो हमें उस जगह पर प्लेस होने की। अब वो चीज आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं कि प्राइवेट से करना चाहते हैं, वैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, पीपल हैव टू लर्न दिस, गवर्नमेंट और प्राइवेट कुछ नहीं होता है, इट इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट एंड पब्लिक। So it is professionally owned. Like if you see L&T, the honor of it is it has got a stake of mutual funds, DIIs, FIIs के funds इसमें stake हैं, LIC का stake है, तो इसका प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। इंजीनियरशिप प्रमोट होकर के यहाँ मैनेजर्स, और मैनेजर्स बाद में ऊपर जाकर के बोर्ड डायरेक्टर्स और चेयरमैन के लिए बनते हैं। तो सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव रहती हैं, आगे बढ़ने का रास्ता बहुत कुछ रहता है, सेटिस्फैक्शन अल्टीमेट गोल है, मनी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। लाइक यू टोल्ड, सैलरी लेस होती है, ट्रेनिंग में सैलरी की एक्सपेक्टेशन रखना तो अच्छी बात नहीं है। मैं बताता हूँ, तो पहली सैलरी आपकी वो होती कि आप कितना ज्यादा नॉलेज बैंक अपनी पहली कंपनी से ले सकते हो।
मतलब मैंने ये चीज पर्टिकुलरली बहुत सारे लोगों से शेयर की है। मैं साइट पर काम करता था, एग्जीक्यूशन इंजीनियर था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि अपनी साइट टीम को, प्रोजेक्ट मैनेजर को इम्प्रेस करके प्लानिंग में आ जाऊं। प्लानिंग में काफी स्मार्ट लोग रखे जाते हैं, ऐसा हम्म, ऑब्जर्वेशन होता है। और हम्म, शुरू में सबको प्लानिंग में नहीं रखा जा सकता, तो रोटेशन हाँ, बेसिस पे होता था। हाँ, क्योंकि हमारी, तो जैसे आपकी पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, आप एग्रेसिव रहोगे, तो आपको काम कराने के लिए भेज देंगे, दे विल हम्म, सेट यू एट साइट। कुछ हम्म, और भी क्वालिटीज देखते हैं, टोटल विजडम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। हम्म, तो अब उसने क्या सोच के सिलेक्ट किया, रोस्टर बनाया, क्या किया। तो मैं, यू कैन सी लेवल इज लाइक कि आपको अगर टीम में आना है तो व्हाट यू नीड, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट पढ़ने आने चाहिए आपको। कुछ तो इम्प्रेस करना पड़ेगा लोगों को, पीपल शुड थिंक अबाउट यू। तो व्हाट यू कैन डू, जो हमारे प्लानिंग इंचार्ज मैनेजर्स होते थे, तो वो प्रिंट्स निकालते थे, they used to take out the print. So sometime when you take print ना, तो हरी बरी में क्या होता है, prints is not coming proper on the page. So for you it is a waste paper, you again go and print a right paper. But हम्म, for you put it in the rough, अब आप बंद करके चले भी जाओगे तो whenever लेट इवनिंग में वापस साइट से आकर के प्रिपेयर होता था गेस्ट हाउस जाने के लिए, तो कुछ हमेशा डॉक्यूमेंट कुछ यूजफुल मिलते थे। कई मेरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज मिली, रेट हम्म, एनालिसिस मिले पढ़ने को। और फिर हम्म, वहां से जब इंटरेक्शन शुरू किया सीनियर्स के साथ, तो हम्म, बहुत सारी चीजें आई। देन दे आल्सो गेट स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व, सब पूछ रहे थे। फिर धीरे धीरे पता नहीं चला, साल भर बीत गया और सैलरी का इंक्रीमेंट आ जाता है। तो मैं सीरियसली बताता हूँ, सैलरी कंस्ट्रेंट होता ही नहीं है अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो टेक माय वर्ड्स इन योर फोकस। I know about good companies. I do not know about entire sector, but it just take 5 to 6, 7 years to make your salary 4, 5 times. I have friend whose salary is 6 times comparison to what they have joined in within 7 to 8 years. तो सैलरी बिल्कुल कोई कंस्ट्रेंट नहीं होती है। जो क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर्स की सैलरी गवर्नमेंट में होती है, ऑलमोस्ट वही सैलरी यहाँ आपको मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इन सब कैटेगरीज में मिलती है। बेनिफिट्स उनसे भी कुछ अच्छे हो सकते हैं, लिबर्टी और बढ़िया होती है, और काम करने की जो फ्रीडम होती है और अथॉरिटी, वो और भी ज्यादा मुझे इन्फोर्स लगती है यहाँ पर। यू यू डू नो नॉनसेंस काइंड ऑफ इंजीनियरिंग है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अगर आपने सेक्टर सही पकड़ा है। और द सेकंड बिगेस्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। वेर एवर यू गो, इट डज नॉट मैटर। आप 3 साल बाद छोड़ करके दूसरे बिजनेस में जाते हैं, फिर से आप वहाँ क्या रहेंगे, लर्नर, यू विल स्टार्ट। हम्म, फिर आप वहां से छोड़ करके मीडिया में जाते हो, फिर आप लर्न करोगे। तो द होल लाइफ इज नॉट अबाउट स्टार्टिंग द केजी एजुकेशन ना। तो हम्म, आपको क्लासेस भी तो बढ़नी है। तो इट इज बेटर, जैसे लाइक अब जो हमारे पास जो होल्ड आया अपने सेक्टर का, अब जो हमारे पास नॉलेज है, आई मैं सर्टेन सीनियर्स आर देयर, दे आर वेरी गुड पोजीशन प्लेस। वो हमें फोन करते हैं, पूछते हैं, प्रोस्पेक्ट समझते हैं, हमसे रिपोर्ट्स बनवाते हैं, हम उनके लिए ड्राफ्ट भी लिखते हैं कभी कभी। तो ये हमारे लिए इससे बड़ा जो कह सकते हैं रिवार्ड और क्या हो सकता है। हम्म, तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं और आपका इंटरेस्ट है और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब फिर तो उसे मिस ही नहीं करना चाहिए। और द लास्ट कमेंट इज लाइक कि अगर नहीं मिलता है तो यही एक फील्ड है जहाँ पे आप प्लेटफॉर्म बना भी सकते हैं। हम्म। और सर पेशेंस का आपका जो कन्वर्सेशन था उसमें मतलब बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि 6 7 ईयर्स बाद मतलब सैलरी इतना डबल होता है। और उसमें पेशेंस भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आप कोई कैंडिडेट चाहता है कि इमीडिएट आपको हाई सैलरी मिले, इमीडिएट आपको रिजल्ट्स मिले, तो वो हो नहीं पाएगा। क्योंकि जो आप बोल रहे हैं कि 6 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस भी कंपनी को मैटर करता है, कंपनी को बेनिफिट करता है। क्योंकि उस समय कैंडिडेट काफी सारी चीज सीख जाता होगा। तो उसी से रिलेटेड मैं मतलब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है। मतलब मान लीजिए 6 इयर्स 7 इयर्स जैसे आपका एक्सपीरियंस है, तो उसमें मतलब सी कैंडिडेट का वैल्यू कितना बढ़ता है? देखिए, इसमें बहुत कुछ, एक बहुत बड़ी रेंज है। रेंज ये होती है कि हर चीज पैसे में नहीं देखी जा सकती है। तो डेफिनेटली। एवरीथिंग कैन नॉट बी रेटेड इन टर्म्स ऑफ ग्रेड और मनी। कंपनीज वगैरह के पास कुछ वैल्यूज हैं। आप आपको मैनेजर बना सकते हैं, इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर बना सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बना सकते हैं, मैनेजर बना सकते हैं। कुछ 4 5 ग्रेड है जो 2 2 3 3 साल में आपको प्रमोट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी वो चीज होती है इंडिविजुअल कैपेबिलिटी को बढ़ाना। तो होता क्या है कि आपकी वैल्यू, तो दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आप एक्वायर क्या करते हो, और सेकंड जो आपने एक्वायर किया है उसकी वैल्यू कितनी है, आप उसको होल्ड कितने अच्छे से करते हैं। मतलब
आप किसी से इट जस्ट टेक सम 30 मिनट्स और 20 मिनट्स, आप किसी के साथ बैठेंगे और द वेरी आफ्टर 20 मिनट्स ही विल रियलाइज with which kind of person he met, what was the gravity in your wisdom, what was the knowledge you were having. तो होता क्या है कि आप जिस फील्ड से जुड़े हैं उस फील्ड के बारे में सब कुछ सीखना है, जहां तक आपका मन करता है, जहां तक आपकी बुद्धि जाती है, जहां तक आपको अच्छा लगता है। तो आप जब सीखते हैं तो आप एक कंप्लीट, मतलब हम इंजीनियर के साथ साथ हमें नेगोशिएट करना पड़ता है, हमें क्लेम मैनेज करना पड़ता है, गवर्नमेंट क्लाइंट से डील करना पड़ता है, प्राइवेट क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर से डील करना पड़ता है, लोकल इश्यूज होते हैं। मैं बहुत सारी ऐसे साइट्स पे गया हूँ, मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियन से डील किया है, बहुत सारे यू कैन से नोटोरियस पीपल आल्सो आर देयर, हाउ टू मैनेज देम, कैसे उनको इंगेज करके लाया जाए। इट इज नॉट ऑल डिसीविंग। आपको ब्रेन मिला है तो सपोज गॉड हैज गिवन यू ब्रेन, तो डोंट मिसयूज इट, इसको अच्छे में यूज कर सकते हैं। आई हैव credentials that I have been inducted some one of the most notorious people in that vicinity area. I made them with good, very good contractor. They are still in touch with me. तो ये चीजें, ये बेनिफिट्स और ये प्रिविलेज केवल इसी सिविल इंजीनियरिंग में ही मिलता है, इस ये काइंड का सोशल प्रिविलेज। तो पेशेंस की बहुत वैल्यू है, और पेशेंस आपके को सीखने का मौका भी देता है। जब आप पेशेंस रखते हो, इवन जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ टॉकिंग इटसेल्फ, so when you have patience, now you can just hear the person who is speaking. You can understand a lot of things what you are not knowing at all. तो मैं बहुत सारे प्लेसेस पे गया इंडिया में, तो मुझे उनके कल्चर को सीखने में टाइम लगा, उसमें मैंने उनके लैंग्वेज पे भी ध्यान दिया। हाँ सर, आप वो भी बताए थे जब स्टार्टिंग में बात हुआ था हमारा कि यू हैव लर्नड लैंग्वेजेस, उड़िया, बंगाली, 6-7 लैंग्वेजेस। उड़िया अच्छे से मैं समझता हूँ completely. If you talk something, I'll understand. I'll talk also to the worker, उनका मन अच्छा करने के लिए, इससे उनसे कनेक्ट पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर से, लोगों से, क्लाइंट से। Bengali also, then Marathi, Gujarati, some part of Telugu also I understand. तो ये कुछ अच्छी बातें थी। पंजाबी, I have worked there. ये मेरा इंटरेस्ट था, लोगों से मिलना जुलना, कल्चर में घुल मिल जाना, उनके चीजों को सीखना। और होल डे जो इंजीनियर्स होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई मे बी रॉन्ग आल्सो, वो काफी फाइनेस्ट ब्रेन होते हैं सोसाइटी के। तो जिसका बहुत ही तेज दिमाग रहता है उसको वो बताते तो मैथ पढ़ो, मैथ वाले बोलते तुम इंजीनियरिंग करो नहीं। तो जब वो जाता है तो उसके लिए सारे सब्जेक्ट बहुत इजी पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट अगर इजी पढ़ते हैं तो इंजॉय भी करना चाहिए। मतलब मेरे लिए किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का बिल्डिंग डिजाइन में जाओगे तो इट विल जस्ट टेक यू सम 2-3 डेज टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। थोड़ा और फोकस किया आपने तो आपसे नोबडी विल आस्क यू सम रिसर्च, कोई डिमांड नहीं करता उस रिसर्च की। और जब जरूरत पड़ती तो हम करते भी हैं। अंडरग्राउंड वाटर पे, सीपेज पे भी हम रिसर्च कर चुके हैं। ऐसे हम लोग करते हैं साइट पे बैठ के कि नंबर ऑफ पंप्स का डिसीजन लेना भी एक तरीके का बहुत बड़ा रिसर्च। अगर आप उसमें जाओगे तो किस कैपेसिटी के कौन से पंप मंगाए जाए, और अगर है स्टोर में 36 पंप है और 12-12 यूटिलाइज करने तो कहाँ पे क्या लगाया जाए, ये है रिसर्च। ऑपरेशनल एक्सीलेंस, प्रोडक्टिविटी मॉनिटरिंग, वर्कर को हमें एक एक चीज यहाँ तक पता रहता है। जब रेट एनालिसिस में हम जाते हैं तो यहाँ तक भी हमें देखना पड़ता है, एक वर्कमैन कितना लोड उठा के चल सकता है, तो दिन भर में कितने चक्कर मार सकता है, तो इतना ही काम हो सकता है। उससे ऊपर का काम सोचना या प्लान करना गलत बात है, इनह्यूमेन है, और किसी और तरीके से किया नहीं जा सकता है। तो बहुत सारी स्टडी है और एक बहुत बड़ा ये प्लेस है, तो यहाँ पे सब सीखने को मिलता है। और जब इस काम में आप इंटरेस्ट लेंगे तो ये काम बहुत अच्छा लगेगा, इसको अपनाएंगे तो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी इस सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र की, इस फील्ड की, कि जब आप इसको अपनाते हैं तो ये आपको अपना लेता है थोड़ा दिन बाद। ये टेस्ट बहुत करता है आपको, इट टेस्ट यू अ लॉट। तो आप अगर इसके टेस्ट में पास नहीं होना पड़ता, केवल विद स्टैंड करना पड़ता है, बस रुके रहिए, ठहरे रहिए 2 साल 4 साल 5 साल, और ऑब्वियसली अडॉप्टिव रहिए, चेंजेस को समझते रहिए। तो आपको पहले दिन से ही कुछ फ्रस्ट्रेशन आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ शार्पेस्ट ब्रेन से आपका मिलना जुलना होगा। एक ऐसा भी दिन आता है हमारे लिए जब हम सेम डे आई एम इंटरेक्टिंग विद अ वर्कर एंड ही हैज गॉट अ वेरी सैड स्टोरी बिहाइंड हिम, अपना फैमिली परिवार लेके सब कुछ काम करने, यार सुन के ही मन दुखी हो गया। एंड एट द सेम टाइम इवनिंग में वो चीफ इंजीनियर का विजिट हुआ एंड ही हैज कम विद एमएलए, और उसको बहुत कुछ बताया एंड ही हैज आल्सो हैड अ हॉट डिबेट, और कुछ टॉपिक हुआ, he has also told lot of things। तो एक रेंज पूरी वैरी करती है मेंटल स्टेटस की, कि मॉर्निंग में क्या हमारी सोच थी, इवनिंग में क्या थी, एक ही चीज को, उसी काम को देखने का नजरिया बदलता रहता है। और ये प्रिविलेज केवल और केवल इसी को मिलता है। स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने का मतलब जो मतलब कितना इम्पोर्टेंस रहता है कि जैसे आपने बोला कि अभी एक लेबर था, उसका कुछ प्रॉब्लम था,
उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्टर आ गया एमएलए के साथ, तो ये एक प्रॉब्लम से जम करके दूसरे प्रॉब्लम, या मान लीजिए आपका साइट भी खत्म हो गया, उसके बाद अपना पर्सनल लाइफ में जाना, कि साइट का याद ना है, अपना पर्सनल लाइफ में फोकस कर सके। तो मतलब ये जितना भी चीजें हैं, जितने भी अलग अलग वर्क्स हैं, उसको मैनेज करना मतलब कैसे आप मतलब किए, थोड़ा शेयर करिए। अब कभी ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल में, और हाँ। होता होता भी नहीं है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हाँ। प्रोफेशनली तो ऐसा हम बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं जो हमारी हम्म। बहुत कुछ भी मतलब जो हमारा यूजुअल लाइफ है, लिविंग थिंग्स है, उससे कुछ बहुत अलग हो जाएगा। हम्म। कुछ हॉबीज थी, लाइक आई परस्यू म्यूजिक, कुछ हम्म। पढ़ता हूँ तो उसके लिए तो कुछ मना नहीं, आप शाम को नहीं, घर को जाके कर सकते हैं, डेफिनेटली। लोगों से बात कर सकते हैं, आपके परिवार वालों से। हम्म। फैमिली ऑल्सो वेरी सून वो जान जाते हैं कि हम्म। आपकी कितना टाइम आपसे ले सकते हैं, हम्म। तो उतनी ही डिमांड करते हैं। एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो एडवाइस कि अगर आपकी फैमिली है भी, तो आप उनके छोटे छोटे काम, बिजली के बिल जमा करने से के लिए हम्म। भी अगर आप परेशान हो रहे हैं और वो हम्म। नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कुछ डिपेंड सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। हम्म। इसको ही कहते हैं पर्सनल प्रोफेशनल। इट डज नॉट मीन कि आप हम्म। प्रोफेशनल को बंद करके पर्सनल में ही लग जाएं, या पर्सनल को बंद करके प्रोफेशनल हम्म। में लग जाएं। तो हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं रहा। बहुत सारा ऐसा दिन आया जब ऑफिस में हम्म। बहुत लेट तक हम लोग रुके। आई रिमेम्बर मैनी डेज व्हेन आई वाज एट हम्म। साइट, तो 10, 11, 12 भी बज जाता था, लेकिन कभी हम्म। कंप्लेनिंग नेचर नहीं रहा। मतलब हम्म। ऐसा लगा ही नहीं कि हम कुछ हमसे ज्यादा हो रहा है, गलत किया हम्म। जा रहा है। हम्म। तो हमेशा ये चीज रहती थी कि मुझे करना है, सीखना है, टारगेट्स रहते थे हर दिन, खुद के बनाए टारगेट, मतलब हम ही लोग देते थे। यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है सिविल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ कोई आपका बॉस ज्यादा टारगेट नहीं देगा, उससे ज्यादा टारगेट आप अपने नीचे वाले को दे देते, इंजीनियर को, सबॉर्डिनेट को, मुझे शाम तक होना चाहिए, कल मुझे चाहिए, माइलस्टोन दे देते हो, 7 दिन में होना है। तो जब आपने टारगेट दे दिया तो सब कुछ इको सिस्टम उस स्पीड से भागता है। और जब आप सारे अरेंजमेंट कर लेते हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कंस्ट्रक्शन में प्रॉफिट टाइम से बनाया जाता है। ये एकदम बिल्कुल एक तो बहुत ही फाइन मीनिंग है इसकी, कि आप सीक्वेंस कितना अच्छा मैनेज करते हो, उसी को शेड्यूलिंग बाद में बन के बनता है। राइट वर्ड इज शेड्यूलिंग। शेड्यूल करते हैं क्रिटिकल पाथ, पैरेलल फ्लोट, ये सब देखते हैं, बट सीक्वेंस ये है कि डे टू डे एक्टिविटी में अगर आपने सच्ची कर ली। तो सर, जैसे आपने बताया कि आपने अलग अलग पोजीशन में प्लेस्ड हुए थे, you were placed in different positions in different places in India, and you were also learned different languages there, and you had a lot of experience with people. तो हमारा जो ये शो है, इसका नाम है सिविल के दुनिया के मजेदार किस्से, CKDKMK। तो ऐसा कोई आप किस्सा सुनाना चाहते हैं कि रिलेटेड टू योर वर्क, की कहीं भी आपको मतलब इंटरेस्टिंग लगे, जो अपने व्यूअर्स के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हाँ। हमेशा डे टू डे लाइफ में होती रहती थी। हाँ। खास करके जो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जब साइट में जाते हैं ना, तो उस समय कुछ ही लोग होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं। तो उस समय सबसे पहले आपका सामना होता है अच्छे लोगों से कम, बुरे लोगों से ज्यादा होता है। हम्म। तो वो पॉलिटिकल प्रेशर लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर लेकर, हम्म। बिकॉज दे नो होता क्या है कि एक रेवेन्यू जनरेशन का एक मॉडल टैक्स कलेक्शन है किसी डिस्ट्रिक्ट में। हम्म। तो उनके पास कुछ 200, 300, 400 करोड़ रुपए रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो। और दूसरा, जब एल जैसे या कोई बड़ी ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आता है वहां पर, तो उसके पास 600-700 करोड़ रुपए रहते हैं 2-3 साल में खर्च करने के लिए। तो रफली मैं इसको लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ कि 200-300 करोड़ रुपए उस प्रोजेक्ट मैनेजर या उस टीम के पास रहते हैं जो वहाँ काम करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतना बड़ा मनी फ्लो होगा तो उसमें बहुत सारे लोगों का स्टेक इन्वॉल्व होगा, बहुत हम्म। सारे लोग सप्लाई करना चाहेंगे, हम्म। कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर्स आते हैं, बहुत बहुत इश्यूज होते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। तो मुझे याद है कि मेरा बहुत ही उस समय जस्ट प्रमोशन हुआ था, और मेरे साथ हम्म। एक कई कैटेगरीज होती हैं, इंजीनियर्स होते हैं, सर्वेयर्स होते हैं। तो सर्वेयर जो होते हैं वो कुछ कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं, तो बट जस्ट बिकॉज वो कई साल तक रहते हैं, तो वो एज ए एम्प्लॉय ही रहते हैं, उनको वैसे ही बेनिफिट दिए जाते हैं। तो आई वॉज हैविंग ए वेरी सीनियर सर्वेयर इन माई टीम। तो एट दैट टाइम हम 2-3 लोग रहते थे, और वो पावर प्लांट बनना था, और कंप्लीट एरिया जो गांव के लोग थे, उन्होंने गवर्नमेंट को 6-7 साल पहले दे करके वो उनकी लोकल लैंग्वेज में मुआवजा बोलते हैं, हम्म। तो वो पैसा तो उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट देती, ले चुके थे वो। हम्म। तो लेने के बाद होता यह था कि जब उसके बाद भी उसमें खेती कर रहे थे, तो हमेशा उनका रिक्वेस्ट रहता था कि सर 2 महीना रुक जाइए, फसल कट जाए तब अगली बार आप शुरू करिए आप लोग। तो एक ह्यूमन ग्राउंड पे हमें लगता था कि जब तक हमारी प्लानिंग और ये सब हो रही है, ड्राइंग फाइनल हो रहा है, हम्म। गवर्नमेंट्स के साथ कुछ बातचीत चल रही, तो अभी 1-2 महीना तो कुछ बात ऐसी नहीं है।
लेकिन उस समय कुछ नटोरियस लोग, तो कुछ ऐसे लोग जो सोसाइटी के लिए थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करने प्रॉब्लम वाले क्रिएट लोग करते होते हैं, हैं। तो वो लोग जो है वहाँ आना शुरू कर देते हैं। तो उस समय क्या रहता है कि मैं आई वाज प्लानिंग इंजीनियर हम्म देयर, हम्म और मैं जस्ट प्रमोट होने वाला था, असिस्टेंट मैनेजर में जाने वाला था, ऐसा मेरी हम्म होप थी कि हो जाऊंगा नेक्स्ट ईयर। हम्म तो जब सीनियर इंजीनियर आप बनते हो तो आपको लगता है कि मैं सीनियर लगा नाम के आगे, तो लोग आपको रिस्पेक्ट करें, ऐसा हम्म होता है हम्म फील। हम्म, स्टार्टिंग के करियर में प्रमोशंस का बहुत वैल्यू होता है, पैसे हाँ, बढ़े ना बढ़े प्रमोशन मिलना चाहिए होता है। प्रमोशन होना चाहिए। तो होता क्या है कि तो वो सर्वेयर जो था वो गाड़ी में जाया करता था, तो उसके साथ मैं देखता था इंटरेक्शन में, हमेशा एक अपना इंप्रेशन बनाने की कोशिश करते थे वो, कि मैंने इनके साथ काम किया, बड़े बड़े लोगों का नाम बताते थे, बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस बताते थे। तो आई यूज टू वॉच हिम, तो ही यूज टू टेक आवर सरनेम के हिसाब से हमें बुलाया करते थे। हम्म तो हमेशा फील होता था कि ये कैसे, मतलब ही यूज टू कंसीडर हिमसेल्फ एज सुपीरियर हम्म टू दैट टीम। So then I realized one day that a group of people in Scorpio vehicle, they also came and they started making a lot of issues. They indulge with some conflict हम्म with workmen जो बाहर ऑफिस बना रहे थे, स्टार्टिंग में ऑफिस बनाना रहता है, तो तब ताकि उसके बाद ही उस पर बैठते हैं हम लोग। तो उनके साथ ही इन्वॉल्व हो गए कुछ काम में। तो मैंने देखा कि वो सर्वेयर से जो बात कर रहे थे, जब उसको लगा कि, क्योंकि सर्वेयर ही अपनी मशीन रख करके सब चेक करते रहेगा, उसमें लेवल लेता रहेगा, टोटल स्टेशन रहेगा, उससे वो कोऑर्डिनेट देता रहेगा, तो ये काम देके जाते हैं, फिर आके चेक करते हैं कहाँ पे क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, क्या फिजिबिलिटी है, ग्राउंड रिपोर्ट देना रहता है। तो द मोमेंट इट केम ना, तो ही यूज्ड टू टेक माय नेम अर्लियर व्हेनेवर ही वाज इन मेस एंड हम्म और जैसे ही उन लोगों ने जो ऐसे भारी भरकम लोग थे, उन्होंने उसको घेरा और उसके बाद उससे एग्रेसिव मूड में बात किया, तो उसके बाद ही उसने तुरंत कहा कि देखो मैं कुछ भी नहीं हूँ, सर के पास सारा पावर है, अच्छा ये अच्छा। जो कर सकते कर सकते। तो हम्म मेरी हंसी छूटनी शुरू हो गई। हम्म एंड देन आई रियलाइज कि जस्ट बिकॉज ऑफ फियर हम्म इसने मुझे उनके सामने सर बोलना शुरू कर दिया। हम्म तो हमने उसके बाद उनसे मजाक भी किया, और कई बार हम्म गाड़ी में जब आए तो हमने बताया भी कि हम्म बात से तो आपको ये हम्म और कुछ अच्छी अच्छी बातें ये होती थी कि जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते थे, तो एक बार बहुत सारे लोगों ने आकर के स्ट्राइक जैसा माहौल बनाया, तो घेर लेते ऑफिस को, तो जाएंगे अच्छा। नहीं। उस समय हमारे बहुत सीनियर नहीं आते, बहुत स्टार्टिंग का जॉब रहता है, हम्म तो वो एक मौका मिलता है लीडरशिप का, आगे से हम्म चेंज को लीड हम्म करने का। तो हम्म आई वाज सिटिंग इन अ चेयर एंड इट वाज अ कोटा केबिन। तो कई सारे लोग आ गए, तो मैंने उनसे बोला कि तुम लोगों में से जो सबका सरदार हो वही यहाँ बैठ सकता है। तो हम्म वो अचानक से गुस्सा हो गए इस बात को लेके कि हम्म हम डकैत है जो आपने हमें सरदार बोल दिया। मैंने कहा हम्म सरदार इसलिए बोला कि तुम्हारा जो ग्रुप है इसमें सबसे अच्छा आदमी जो है वो यहाँ बैठ सकता है चेयर हम्म पे। हम्म, तो अब दो ही हैं और मैं अपनी खाली नहीं करूंगा, हाँ। तो आपको बैठना है। तो काफी बातचीत हुई। तो उनका जो तरीका था बहुत प्रेशराइज करने का था, उन्होंने सुपरवाइजर सिक्योरिटी गार्ड को बहुत एग्रेसिवली हैंडल किया था। हम्म तो मैं कॉमनली उनसे बात करता था, मेरा बैकग्राउंड यूपी से है, तो मैं यहाँ अच्छा। से जाता था, मैं ऐसी चीजें हमेशा सुनते देखते आया हूँ। हाँ। बचपन से पेपर पढ़ता, लोगों को समझता है, तो मुझे थोड़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग रहती है लोगों के बैकग्राउंड किसकी। और मैं बहुत सारा, तो आप क्या होता है कि हम्म जब बहुत सारी चीजें हम बता नहीं सकते, जब फील्ड जाते हैं तो आपको पता लगता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसी चीजें। तो होता क्या है कि अ, हमें होमवर्क करने का टाइम मिलता था, तो आई आई फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ देम आई मेड देम कूल एंड काम। तो दे यूज्ड टू सम ऑफ वेरी क्लोज रिलेटिव वन सिटिंग एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो मुझे उसका नाम बताया करते थे। तो हम्म बोले कि यहाँ का जितना काम है मैं ही करूंगा, दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट दे यूज्ड। हम्म तो देन माय कॉन्फिडेंस वाज कि आप सारा काम क्या चाहते हैं आप। तो उनका कहना ये था कि यहाँ का जितना भी काम है वो मैं करूंगा। हम्म तो मैंने कहा कि सारा काम तो आप नहीं कर सकते हैं। तो हम्म इस पर उनका जवाब था कि यहाँ सारा काम हम ही करेंगे और हमारी मर्जी से ही सारा काम होगा। हम्म तो इस पर मैंने एक पेपर और पेन था उनकी तरफ रखा मैंने, और मैंने कहा टरबाइन की ब्लेड्स आ रही हैं और हम्म उसमें जो है उनको असेंबल करना है। हम्म आप यहाँ पर रेट लिख दीजिए, मित्सुबिशी कंपनी सप्लाई करेगी जापान से। हम्म तो मैंने कहा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, टरबाइन की प्लेट्स जापान, मित्सुबिशी जापान से आ रही हैं, आप किस रेट में उसको असेंबली करेंगे, असेंबल करेंगे, इरेक्शन टरबाइन का करना है, हम्म उसका रेट लिख दीजिए आप। हम्म
आई टोल्ड कि तुम सारे लोग मिलके भी पूछ लो, किसी को फोन करके भी पूछ लो, सही रेट डालना, नुकसान नहीं होना चाहिए। हम्म काफी देर डिस्कशन के बाद भी उनकी समझ में आया, तो देन दे केम बैक टू कि यहाँ पे हम्म बाउंड्री वॉल कौन बनाएगा, रोड कौन बनाएगा। तो मैंने कहा हम्म बस यही यही है आपका स्टैंडर्ड, आपको समझना है कि सारी चीज आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप सारी चीज कर पाते तो फिर हमें यहाँ नहीं बुलाया जाता। तो कैसे पंच लाइन होती थी, जिन तरीकों से उनको समझाया जाता है, प्लस साथ साथ अपने लोगों को भी मैनेज करना होता है, अपनी टीम को भी, कि अगर आपके पास ब्रेन है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी को डिसीव करें। उनकी लाइफ भी चेंज हो जाती है, उनकी लैंड चली जाती है, उनका एक लाइफ स्टाइल रहता है 3-4 साल पहले का, अब उनके पास कुछ काम नहीं है, गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है उनको अगेंस्ट दैट लैंड, बट वेरी सून वो पैसा बिजनेस में या उधर उधर कहीं ना कहीं डूब जाता है। तो उनको इंगेजमेंट चाहिए होता है। हम बहुत कुछ उनकी लाइफ को नहीं बदल सकते, लेकिन 2-4-6 साल अगर वहां रहेंगे, हम उन्हें कुछ ऐसा सिखा के जा सकते हैं हम्म जो उनके काम आएगा। तो मैंने उन्हें बताया कि देखो तुम कल कर वही सकते हो, केवल बाउंड्री वॉल बना सकते हो, रोड्स बना सकते हो, चैम्बर बना सकते हो, ये कर सकते हो, तो तुम अब मेरे सामने ऐसी बड़ी बड़ी बात मत करना कि यहाँ जो भी काम करोगे तुम करोगे। एंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इटसेल्फ, इसने इतना अच्छा काम किया कि उसमें से बहुत सारे लोग तुरंत ही पॉजिटिव हो गए और उनका गुस्सा और एग्रेशन चला गया। फिर मैंने उनके साथ शेयर किया, मैंने कहा तुम लोग मुझसे तुमने पूछा नहीं कि तुम सब लोग जब इतने अच्छे रसूख के साथ और इतना पावर के साथ आते हो तो मुझे डर क्यों नहीं लगता है, पूछना तो चाहिए। तो उसने बोला कि सर आप तो अच्छा सब कुछ बता रहे हैं, आप ही बताइए कि हम्म क्या आंसर है, अच्छा आपको क्यों डर नहीं लगता। तो मैंने कहा इसका कारण ये है कि तुम जो काम कर रहे हो, मैं जो काम करता हूँ, मेरे काम को मैं अच्छे से समझता हूँ, जानता हूँ, पढ़ता हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश हर दिन करता हूँ। आप जो काम करते हैं, आप उस काम के बेसिक ही नहीं जानते। तो सारे के सारे चौंक करके हमारी तरफ देखने लगे कि सर ये क्या बात बोल रहे हैं। मैंने कहा जब तुम सब 10-12 लोग मिलके आते हो एक साथ, तो जाने के बाद फिर अलग अलग एक एक लोग आते हो कि सर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो हम्म ऐसे में आप किसी को कैसे डरा पाओगे। तो, तो ये एक बहुत, तो आपस में उनके बीच भी एक चीज ये आ गई कि एक ट्रस्ट होता है, खत्म हो जाता है। सपोज 10-12 लोग आपको डराने के लिए आते हैं और बाद में उसमें से अलग अलग फिर आके मिलते हैं आपसे, इसका हम्म मतलब यही है कि कुछ भी सीरियसनेस नहीं है उसमें। हम्म हमने कहा जो काम आप करना भी चाहते हो, भले वो गलत काम है, लेकिन उस काम को भी आप करना नहीं सीखते हैं। हम्म तो ऐसे इसके बाद क्या होता था, मेरे लिए भी बहुत नया एक्सपीरियंस था हम्म और ये सब कुछ बहुत डर के माहौल में भी होता था, केयरफुल रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता था। बट धीरे धीरे इन सब चीजों की आदत हो गई, हम समझ गए लोगों की साइकोलॉजी समझना, बात करना। और ये बहुत अच्छी चीज इस पर्टिकुलर बिजनेस से मिली। सैलरी आपने पाई, हम्म आपने जॉब की, आपने इंजीनियरिंग मार्वल्स बनाया है, आपने स्टडी जो की, आपके स्टडी से पैसा आता है। मतलब कई सारे हैप्पीनेस में एक ये भी हैप्पीनेस है लाइफ का कि आप जो पढ़े उसी पढ़ाई से आपको पैसा मिले, क्योंकि दूसरी चीज में हमको कुछ ही नया सीखना पड़ता है। तो ये एक अच्छी चीज, उसके साथ साथ अच्छा कि ये बोनस है, ये जो मिलते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। बाकी किसी फील्ड में कितने मिलते हैं नहीं मिलते हैं उसको मैं नहीं कह सकता हूँ। और जैसे अभी कोविड-19 क्राइसिस है, अगर ध्यान से देखिए आप उसको, तो जो भी ग्लैमरस इंडस्ट्रीज थी, यू टेक फैशन, यू टेक ड्रामा, आप स्पोर्ट्स सिनेमा, मूवीज, यू कैन टेक, तो उन सबका तो अभी फ्यूचर बिल्कुल अनसर्टेन है कि उनके साथ क्या होगा। हम्म लेकिन सबसे पहले अगर कोई इंडस्ट्री ओपन हो रही तो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन है। हाँ तो डेफिनेटली ये प्रिविलेज आपको हमेशा मिलेगा। हम्म तो उनके बिना काम चल सकता है, लेकिन आपके बिना काम नहीं चल सकता है। तो आप अगर ऐसे किसी पूल का पार्ट बनना चाहते हैं तो राइट प्लेस है, यहीं रुकिए। और यहाँ से आगे जाने के बहुत प्रॉस्पेक्ट रहते हैं, प्रोवाइडेड आप कंसिस्टेंट रहें और पेशेंस रखें। पेशेंस की बहुत बड़ी वैल्यू है यहाँ, पेशेंस पेज यू अ लॉट हियर। बहुत ही अच्छा लगा आपका एक एक्सपीरियंस सुन सुन के। तो मैं कंक्लूड करने से पहले आपसे एक लास्ट आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा बिफोर रैपिंग इट अप कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के या तो वो ग्रेजुएट्स हैं अभी अभी कहीं पे जॉब कर रहे हैं या जॉब करेंगे तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी कैसे वो हाउ दे विल तो प्रोसीड उनके एड। या श्योर, तो उनके लिए मैसेज जो मुझे बहुत रिलेवेंट लगता है अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं अपनी जर्नी आगे पहुंच चुका हूँ और आगे भी बहुत आगे जाने का एक ड्रीम रहता है सबका। तो वहां से एक मैसेज ये है कि अ, अगर फील्ड सिलेक्शन में कोई डाउट है तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए, आप अच्छी फील्ड में। सेकंड चीज, हर फील्ड में एक पर्सनालिटी ट्रेट की जरूरत होती है और ये बहुत ही ड्रामेटिक होती है।
और बहुत ही सुपरफिशियल होती है। हिंदी में इसको बोलते हैं सतही होती है। मतलब आप इसको सीख सकते हैं, यू कैन आर्टिकुलेट ऑल दोस थिंग। जरूरी नहीं कि आप अंदर से कैसे इंसान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना है वो चेंज होना सकता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ जॉब है, इंजीनियरिंग का भी इसमें इंटरेस्ट है, साइंस का बैकग्राउंड मिलता है और बहुत सारी चीजें चेंज करने की पावर मिलती है। तो एक बहुत बढ़िया फील्ड है, अगर आप इसमें रहें तो। थोड़ा स्टार्टिंग के डेज बहुत स्ट्रगलिंग होते हैं, 3 to 4 years, तो उसको पेशेंटली ऑब्जर्व करना चाहिए और उसमें विथस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही रिवार्ड भी बड़ा होता है। तो ये एक चीज होती है। और सेकंड चीज ये है कि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर नहीं हो सकते, बट एक्सेप्शनल कॉमन सेंस अगर आपके अंदर है तो वो बहुत काम आता है। इंजीनियरिंग की मुझे तो लगता है सेल्स मार्केटिंग, वेरेवर यू विल गो, बिजनेस डेवलपमेंट, क्लाइंट इंटरेक्शन। मुझे सबसे बड़े लीडर्स को भी मैं स्टडी कर रीड करता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि उनके अंदर सबसे अच्छी चीज है कि उनका कॉमन सेंस बहुत अच्छा होता है। और कॉमन सेंस बेसिकली सबका अच्छा होता है, जस्ट फर्क इतना पड़ता है कि हम अवेयर होना बंद हो जाते हैं। तो कम से कम आप बहुत बुकिस नहीं हो, स्टूडियस नहीं हो, तो अवेयर रहिए अपने चेंज, आसपास बदल क्या रहा है। एक अच्छे जिसको बोलते हैं कंपोजिट पर्सनालिटी डेवलप करिए, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी आई शुड से, कि अगर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है, मैं बिम सीख रहा हूँ, तो एट द सेम टाइम मुझे साइट भी पता होना है, तभी मेरा रिलेवेंस है। नहीं तो मैं कुछ ऐसी बात करूंगा जो दूसरे के काम नहीं आएगी। तो इसलिए दोनों चीज को रखना है, अपने बिजनेस को, अपना जो सेक्टर है उसको समझना है। यू हैव टू लव योर द प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में आप जानते हो। इंजीनियर श्रीधरन की बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। माय चेयरमैन एएम नाइक की एक बुक है द नेशनलिस्ट, आप उसको पढ़ सकते हैं। सिंपल इंजीनियर कैसे गुजरात से मुंबई आके ज्वाइन करता है, प्रमोशंस लेके इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी का चेयरमैन बनता है, और उनके रिम्यूनरेशंस, बेनिफिट्स, सोशल वर्क पूरा इंडिया जानता है। आज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कैबिनेट मिनिस्टर जैसा उनको वैल्यू मिलता है, एंड ही इज इन द प्लानिंग में, जब पॉलिसी मेकिंग में बड़ी बड़ी चीजों में उनका से है। तो ये सब चीजें और ऐसे बहुत सारे लोग हैं करते हैं। तो लीडरशिप के लिए भी असीमित संभावनाएं हैं, सेटल होने के लिए, कंफर्टेबल लाइफ के लिए भी असीमित संभावनाएं हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से चाहते हैं तो इंजीनियर श्रीधरन को पढ़िए, आप उनके बारे में समझेंगे। एक से बिल्कुल सामान्य से इंजीनियर से, ही वाज नॉट, आज ही मैंने अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया है कि वो किसी बहुत बड़ी आईआईटी या आईएम से पढ़े नहीं थे, सिंपल इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पढ़ते हुए आगे बढ़े, और इंडिया में मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल बहुत क्लियर था। मुझे कुछ ऐसी अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी उनके बारे में मिलती रहती इस सेक्टर में रहने से, कि पीएमओ के बड़े ऑफिसर्स भी उनसे बात करने में टाइम के बाद, 5 o'clock 6 o'clock के बाद बात करने में सोचते थे कि सर से क्या बात करना और एजेंडा है, टाइम लिया है या नहीं लिया। तो हर तरीके का जो भी आपको आपके सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो यहाँ अवेलेबल है। स्टार्टिंग डेज स्ट्रगलिंग रहता है, उसको माइंड मेकअप करके रहना है, स्ट्रगल करना है। आसपास का बहुत सारा डायनामिक सिनेरियो रहता है, उससे मिल के चलना है, और बहुत कुछ वर्ल्ड में चेंज होते रहता है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर की मांग करता है। दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री डिमांड्स अ वेरी एडमिनिस्ट्रेटिवली कैपेबल लीडर। तो फॉर दैट यू हैव टू बी अपडेटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। स्टिल टुडे आल्सो आई रीड अ लॉट, whatever it is there in the world outside, whatever is happening, even if Russia, whether he's in product of oil or get updated. चाइना इज डूइंग व्हाट, वैक्सीनेशन इसराइल जो आज कर रहा है उस पर क्या अपडेट है मुझे रखना पड़ता है। इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि कोविड की वजह से, इसके पहले से भी है, पुराने टाइम से। यूएस इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, हम कैसे पॉलिसी मेकिंग करते हैं, तो ये सब बहुत काम आता है। इनडायरेक्टली ये आपको हेल्प करता है मैनेजर लेवल में जाकर के आगे बिजनेस डेवलपमेंट में, लीडरशिप पोजीशन में। बट जूनियर पोजीशन में भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, और आपको सोसाइटी से जब प्यार होगा, तो व्हेन यू विल लव मीटिंग विद पीपल, इंटरेक्टिंग विद पीपल, गो टू प्लेसेस, तो फिर आपको सिविल इंजीनियरिंग में रहना और इसको एंजॉय करना बहुत इजी हो जाएगा। सो और ये बिजनेस बिल्कुल अलग है, सिविल इंजीनियर की तरह ही बनिए। हम किसी दूसरे की तरह बन के किसी और के बिजनेस की कॉपी करके अपने बिजनेस में एक्सेल करने का सोचें तो ये गलत बात होगी, और ना हमारे जैसा कोई दूसरा बन सकता है। ये बहुत यूनिक फील्ड है, बहुत यूनिक लोगों की रिक्वायरमेंट है, और बहुत लाइफ में बहुत अपने हर जगह ये देखा होगा कि रेस्टोरेंट के बाद लोगों को ढाबा पसंद आता है, वो हाईवे पे जाते हैं। शहर के बाद लोगों को गांव पसंद आता है, क्योंकि बेसिक जो होती है, बेसिक लिबर्टी यही होती है।
तो आप अगर इंजीनियर बन रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ अथॉरिटी चाहिए कल को चेंज करने के लिए। जब तक आप चेंज मेकर का पार्ट नहीं बनेंगे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो साल 2 की जॉब और सैलरी सोचिए, ये सोचिए कि यहाँ आपको पावर और कितनी मिलती है। और सैलरी, मेरे ये कमेंट का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं कि सैलरी बिल्कुल करना है। इट इज वन ऑफ द इंडस्ट्री राइट नाउ। कुछ बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज में है लेकिन कैपेबल लोगों को बहुत अच्छे पेमेंट मिलते हैं। मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ उनके पे पैकेजेस, और मुझे पता है कि उन लोगों के पे पैकेजेस ठीक उतने ही हैं जितने किसी अच्छे कॉलेज से आईएम से एमबीए करने के बाद भी लोग जो पा रहे हैं। दे आर गेटिंग द सेम काइंड ऑफ सैलरी विद द ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग डिग्री इटसेल्फ। तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो आप बिल्कुल मोटिवेटेड रह सकते हैं, फोकस रह सकते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है। और सबसे अच्छी चीज इसकी है, ये आपको एक रिलेवेंट इंसान बनाती है। मतलब आपका यूजफुलनेस हमेशा रहता है सोसाइटी के लिए। किसी भी समय आपको, हम लोग मजाक में कहते थे जॉब मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो जॉब देंगे। तो दैट वाज द ओवर कॉन्फिडेंस काइंड ऑफ स्टेटमेंट एट कॉलेज लेवल। लेकिन अब जो भी हो, सच्चाई ये है कि यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप कुछ लोगों को लेकर के अपना खुद का भी कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और आपकी जरूरत सोसाइटी को और इकोनॉमी को हमेशा रहेगी। वेरी राइट प्लेस। यू शुड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड एंड कीप योरसेल्फ एंगेज्ड। कि जब भी खाली समय हो तो कुछ हॉबीज रखिए। हॉबी रखना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो हॉबी आपको हेल्प करती है सेल थ्रू करने में जब आपका डिफिकल्ट टाइम रहता है। So, thank you sir for coming to our show and sharing your experiences with our viewers. आपसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर किया, कैसे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट अपने डेवलप किया, कैसे यू वेंट थ्रू योर बीटेक टाइम एंड हाउ फ्रेशर्स शुड गो एट देयर इनिशियल फेजेस इन ए कंपनी, कैसे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, कैसे फील्ड में कॉमन सेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में जो आप मैसेज दिया बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज था। एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत सारा चीज़ आपने बताया, तो काफ़ी अच्छा लगा हम आपके साथ बात करके, आपके साथ इंटरेक्ट करके। हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड वंस अगेन आई वांट टू थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। सो एक बार आप मतलब हमारे व्यूअर्स को बाय कर दीजिए। You're welcome. Stay good, stay happy, stay safe. Thank you. Thank you so much.